नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपी न्यूज बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे। दोस्तों, जब से अमेरिका में ट्रंप 2.0 की सरकार बनी है, तब से वहां कुछ न कुछ बदलाव हो ही रहे हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा और खासकर चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका फर्स्ट पर जोर देते थे और सरकार बनते ही उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को भी भगाना शुरू कर दिया है। याद होगा आपको कि अभी 2 दिन पहले ही भारतीयों को लेकर भी एक अमेरिकी फ्लाइट भारत आई थी। ये वो लोग हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसे थे। इसी अमेरिका फर्स्ट को और गति देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई वैश्विक संगठनों में अमेरिका की भागीदारी पर पुनर्विचार किया और कुछ संस्थानों से समर्थन वापस ले लिया। इनमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को शामिल हैं। इसका कारण बताते हुए ट्रंप प्रशासन ने कहा कि यह संस्था अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि यह परिषद उन देशों को सदस्यता प्रदान करती है जो खुद मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन का मानना था कि यह संगठन इस्राएल के खिलाफ अधिक सख्त रवैया अपनाता है और अमेरिका के हितों की अनदेखी करता है। In light of numerous actions taken by a number of bodies of the United Nations which exhibit a deep anti-American bias, we have an executive order prepared for your attention that would withdraw the United States from the UN Human Rights Council, would withdraw the United States from the UNRWA, which is a refugee organization, and would also review American involvement in UNESCO, which has also exhibited anti-American bias. More generally, the executive order calls for a review of American involvement and funding in the UN in light of the wild disparities in levels of funding among different countries that, as you've expressed previously, is deeply unfair to the United States. So I've always felt that the UN has tremendous potential. It's not living up to that potential right now. It really isn't, hasn't for a long time. It has, there are great hopes for it, but it's not being well run, to be honest, and they're not doing the job. A lot of these conflicts that we're working on should be settled, or at least we should have some help in settling them. We never seem to get help. That should be the primary purpose of the UN, the United Nations. And again, it's got great potential, and based on the potential, we'll continue to go along with it, but they got to get their act together. What would they need to do, sir, to get their act together? Well, they got to be fair to countries that deserve fairness. They have some countries, as you know, that are outliers, that are very bad, and they're being almost preferred as countries to those that do their job and are doing a good job. And they have to really, they're going to end up losing, a lot of countries, they're going to end up losing their credibility like other organizations, and then they're going to be nothing. The potential of the United Nations, and not everybody agrees with me on this, the potential of the United Nations is fantastic if properly run. So we'll see what happens. How much money are you willing to take away from them? Well, we're taking away a little bit, but we're not looking to take away money. This is so important that we're really, as you know, the United Nations is largely funded by us. But, and it shouldn't be, it should be funded by everybody, but we're disproportionate, as we always seem to be. But it's something that if it ever lived up to the potential, in 10 minutes it would make up the difference. That's the kind of power it could have. Right now it doesn't have that power. UNRWA फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। अमेरिका इस संगठन का सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता था। ट्रंप ने आरोप लगाया कि यह एजेंसी फिलिस्तीनी नेताओं को फायदा पहुंचाती है और इजराइल विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहती है। अमेरिका का यह कदम इजराइल के समर्थन में उठाया गया क्योंकि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि UNRWA की नीतियां इजराइल के खिलाफ जाती हैं और मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने में बाधा डालती हैं। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करती है। ट्रंप प्रशासन ने इस संगठन से अमेरिका की भागीदारी की समीक्षा करने का फैसला किया। अमेरिका पहले भी 2011 में इस संस्था से बाहर हो चुका था जब इसने फिलिस्तीन को सदस्यता दी थी।
ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह संगठन अमेरिका विरोधी फैसले लेता है और इसके कार्य अमेरिका के हित में नहीं है। ट्रंप प्रशासन के इस रुख का एक आर्थिक पहलू भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत संयुक्त राष्ट्र संगठनों को दी जाने वाली फंडिंग पर सवाल उठाए। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अमेरिका की वित्तीय मदद का दुरुपयोग किया जाता है और इसके बदले अमेरिका के हितों की अनदेखी भी की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों से समर्थन वापस लेने का निर्णय अमेरिका की वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका ऐसे संगठनों में पैसा नहीं लगाएगा जो उसके हितों के अनुरूप कार्य नहीं करते। हालांकि उनके फैसलों की आलोचना भी हुई क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अमेरिका की भूमिका कम हो सकती है। ट्रंप के इन फैसलों का असर वैश्विक राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हर खबर आपको समय पर मिलती रहे। और अधिक ताजा खबरों के लिए हमारे न्यूज पोर्टल www.gpnbihar.com पर अवश्य विजिट करें। धन्यवाद और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।